Hello everyone. So today we will discuss about the directing and leading. What is directing? Directing represent one of the essential function of the management, and it deals with the human relations, and it is a managerial functions of guiding, motivating, leading, supervising the subordinates to accomplish desired objective. So without proper direction, employees may go inactive and dull. Directing and leading is very necessary in managerial functions, because without directing, employee will not take a interest in their work. It is defined as the process of influencing people so that they will contribute to organizational and group goals. And managing requires the creation and maintenance of an environment in which individuals work together in a group towards the accomplishment of the common objective. And the manager's job is not to manipulate people, but rather to recognize what motivates the people. Okay, directing is the heart of management functions, and all other functions of management such as planning, organizing, and staffing have no importance without directing, leading, motivations, supervision, communications are various aspects of directing. Without directing, these are not important. Okay, whenever we are doing any work in organizations, there is directing and leading should be there. There are some characteristics of directing refers. Okay, so it is a continuous managerial process that goes on throughout the life of organization. So main characteristics of directing are as follows. So first one is direct direction, pervasive functions. तो इसमें क्या होता है, आपका जो भी आपका डायरेक्शन होता है, ये क्या करता है, टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल लेवल्स में क्या करता है, परफॉर्म करता है. जहाँ की आपका क्या होता है, देयर इज अ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डायरेक्टिंग एग्जिट एज एवरी मैनेजर प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन टू हिज सबऑर्डिनेट्स. ओके, द नेक्स्ट इज ह्यूमन फैक्टर. जो आपका ह्यूमन फैक्टर्स होता है, ये सबके साथ क्या करता है, डील्स करते हैं. इट मीन्स सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करते हैं, डील्स करते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बिहेव होता है. ओके, डिफरेंट सिचुएशंस होती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू टैकल द सिचुएशंस अप्रोप्रिएटली. ओके, then the next is creative functions. Creative function is create like between preparatory and control the functions. overall क्या होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए अपने सारे सबऑर्डिनेट्स पे. देन आपका क्या होता है, आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. देन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मीन्स डायरेक्शन स्टार्ट एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे आपका जो आपका डायरेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में. देन वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा. द नेक्स्ट इज डेलीगेट फंक्शंस. डेलीगेट फंक्शन इज मीन्स हमें डेलीगेटली क्या करना पड़ता है, वर्क करना करता है. डेलीकेसी इन इट टू टैकल द ह्यूमन बिहेवियर. जैसे मैंने अभी आपको ह्यूमन फैक्टर्स में बताया, यहाँ पे भी सेम है. जैसे आपको जैसे ह्यूमन बिहेवियर है, तो उसके साथ कैसे टैकल करना है, ये मैनेजर पे डिपेंड करता है. तो उसको डेलिकेटली क्या करना पड़ता है, फंक्शंस करना पड़ता है वहाँ पे. ओके, द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस. So there are some importance of
directing, the first one is it provide stability. ओके ये क्या करता है, अगर आपको प्रॉपर डायरेक्टिंग है तो ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. एंड स्टेबिलिटी इज अ सिग्निफिकेंट इन द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस. आप जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए. ये नहीं है कि कभी कुछ. ओके सो स्टेबिलिटी शुड बी देयर. Effective directing develops cooperation and commitment among the employee and creates a balance among various department and group. Okay, तो वहाँ पे आपके it helps for 4 tools: persuasive leadership, effective communication, and strict supervision and efficient motivations. Okay, if there is not a strict supervision, then it can create a प्रॉब्लम. तो आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सुपरविज़न होना चाहिए. अदरवाइज जो आपके एम्प्लॉय है वो जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको सीरियसली नहीं लेंगे. ओके और लेजीनेस शो करेंगे वहाँ पे. एंड मोटिवेशंस इज मस्ट. देन नेक्स्ट इज कोपिंग अप विद द चेंजेस. जैसे कि आपने देखा है हर एम्प्लॉयज़ की क्या होती है, टेंडेंसी होती है एनी काइंड ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. बट adapting the environment changes is necessary for the growth of organization. So a managers through a motivation, proper communication and leadership can make the employee understand the nature and content of change and also the positive aftermath of the change. ओके सो ये क्या करता है, आपका हेल्प करता है किसमें, क्लैरिफिकेशन में, इजी एडेप्टेशंस में और स्मूथ रनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी एंटरप्राइजेस. सो द नेक्स्ट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज. ओके सो मीन्स क्या होना चाहिए आपका, जो यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज है एफिशिएंट्स होना चाहिए. इट मीन्स इट इन्वॉल्व्स द डिफाइनिंग द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सबऑर्डिनेट क्लियरली, देयर बाय अवॉइडिंग वेस्टेज, डुप्लीकेशंस ऑफ efforts etc. and utilizing the resources of man, machine, material and money which help in reducing cost and increasing profit. तो ये आप तो इससे क्या होगा, आपका हेल्प होगी कि अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशंस करोगे रिसोर्सेज का तो जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी और जो आपका प्रॉफिट है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा. ओके द नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ directing. So there are 4 elements of directing. The first one is communication and the second one is supervision, the third one is motivation and the fourth one is leadership. So communication, the communications can make the employee understand and the nature and content. Okay, if proper communication is there, so there will बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग. और ठीक है, अगर वहाँ पे अगर सपोज आपका प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं है, जैसे आप मैनेजर ने सबऑर्डिनेट्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया है, तो जो आपका जो गोल है वो आप उसको प्रॉपरली क्या नहीं कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे ड्यू टू द कम्युनिकेशंस एरर्स. ओके द नेक्स्ट वन इज सुपरविजन. So supervision is very necessary. If effective supervision is not there, then maybe there is the chances of loss. ओके मीन्स ये नहीं होना चाहिए आपका कि जो आपका सुपरवाइज़र है वो किसी और को बोल रहा है सुपरवाइज करने के लिए. इससे क्या होगा, वो प्रॉपरली जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, टॉप लेवल तक नहीं पहुँच पाएगी और जो आपके एम्प्लॉय है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे. अगर इफ़ेक्टिव इसलिए आपका क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव सुपरविज़न. सो मोटिवेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर वर्कर्स. एंड द लीडरशिप क्या होना चाहिए, आपका जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए. आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए ताकि आप क्या कर सको, वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट कर सको, उनसे काम करवा सको. इफ़ लीडरशिप क्वालिटी इज़ नॉट देयर तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन. सो देयर आर सम प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन. द फर्स्ट वन इज
हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, ये आपका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग का। इसमें जो पर्सन्स होते हैं, मेनली जो पर्सन होते हैं वो ज्वाइन कर दे द कंसर्न्स फॉर गेटिंग देयर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाइड। समटाइम्स यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ग्रोथ करना, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल्स का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस वांट प्रॉफिट टू इंक्रीज एंड टू रिटेन द मेजर शेयर्स वेयर द employee may perceive that they should get a major share as a bonus as they work really hard for it. So they are expected by the organization to work in a such a manner to achieve the organization goal. Okay, so here the directing has an important role to play in stabilizing harmony and coordination between the objective of both the parties. ओके, तो यहाँ पे किसका रोल है, डायरेक्टिंग का। उसको जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स है आपके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, दोनों के बीच में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, प्रॉपर कम्युनिकेट करना है, ओके, बोथ पार्टीज के बीच में। दैट इज द हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। द सेकेंड वन इज डायरेक्शन, सॉरी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो direction is the order should be received by the subordinates from only one superior, and in other words there should not be dual subordination. okay, जो आपका unity of directions होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपको जो order होता है वो किससे receive होता है, आपका by the subordinates from only one superiors. then ये क्या नहीं होना चाहिए, आपका dual नहीं होना चाहिए. then next is direct supervision. The direct supervision is, it is essential for the manager to have a direct and personal contact with their subordinate, because the direction involve motivating the subordinate towards the work, and the direct supervision makes the subordinates happy and boost their morale. So it also ensure quick feedback of necessary इन्फॉर्मेशंस। इससे आपको क्या होगा, क्विक फीडबैक मिलेगा अगर आप डायरेक्ट सुपरविज़न कर रहे हो, एंड आप जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस है वो आप क्या करोगे, ले पाओगे। ओके, और जो आपका डायरेक्ट सुपरविज़न उसे मैनेजर अपने एम्प्लॉय को क्या कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है फॉर देयर वर्क। द नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल. So among the principle that direct, the one state that appropriate leadership style should be used to supervise, okay, lead, communicate and motivate the employee based on their needs, capabilities, attitudes and other situational variables. So that is the style that is suitable to given a situations. Okay, then appropriate direction technique. तो हमें क्या करना है, appropriate direction technique should be used, it should be suitable to superiors, subordinates and the situation so as to ensure the efficiency of directions. okay, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर हमारा appropriate direction techniques होगी तो ये सारे जो भी हमारे सुपीरियर्स है, सबऑर्डिनेट्स है, उन सब के लिए क्या होगा, सुटेबल होगा, और हमें जो भी मीन्स मटेरियल या जो भी फीडबैक चाहिए होगा वो हमें डायरेक्ट क्या होगा, मिलेगा. ओके, सो यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो विद इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर एग्जिस्ट एन इनफॉर्मल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, जो आपका मैनेजर होता है उसे क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए किसको, ग्रुप को, एंड जो भी इंफॉर्मेशन उनमें कम्युनिकेट हो रखी है, एंड देयर शुड बी अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द सीनियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स एज एन इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ informations are really important for the growth of any organization, so that the formal group can be strengthened. okay, तो जो भी आपके
जिस अगर आपकी प्रॉपर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है प्रॉपरली इफेक्टिव एक्सचेंज हुई है, तो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसकी ग्रोथ के लिए. एंड यूज़ ऑफ मोटिवेशन टेक्निक्स विच इज़ वेरी नेसेसरी. तो मीन्स जो भी वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए. मोटिवेट हम उन्हें कैसे कर सकते हैं, लाइक उनको इंसेंटिव देके, उनका सैलरी इंक्रीमेंट करके, या उनको रिवॉर्ड्स देके हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो अपना काम क्या कर सके, प्रॉपर वे में कर सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ करने में हेल्प कर सके. बिकॉज विदाउट एम्प्लॉय वी कांट डू एनी थिंग. The next is follow up or follow through. Okay, so directing is never a ending process and it involves a continuous supervision, advice, counseling and assisting the subordinates in the performance of their job. So it required continuous feedback which is essential to make necessary modification in the activities of the management. So as per the principal manager are required to monitor the extent to which the policies, procedure and instructions are followed by the subordinate. So if they means अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, then we can implement and then suitable modifications can be made. ओके. तो जो हमारा मैनेजर जो मैनेजर्स होते हैं, उसको क्या करना है, फॉलो अप करना है रूटीनली अपने किसका जो भी मीन्स वहाँ पे पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन फॉलोड होते हैं बाय द सबऑर्डिनेट्स के. ओके, ताकि वो क्या कर सके, कोई भी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके. द नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ direction. So there are 3 techniques of direction. The first one is consultative direction, free rein direction and autocratic direction. The first one is consultative direction. जैसे कि आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंसल्टेटिव सुपीरियर विल हैव कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स बिफोर इशूइंग ऑर्डर्स. ठीक है, अगर कोई भी ऑर्डर वो इशू कर रहा है उससे पहले वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करता है, कंसल्टेशन, उनका कंसल्टेशन मांगता है. सो क्यों, बिकॉज द कंसल्टेशन इज मेड टू नो द फीजिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी एंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, देन वो क्या कर सकता है, राइट डिसीजंस ले सकता है एंड गिव द राइट डायरेक्शंस. जैसे कि आप सपोज फॉर एग्जांपल आप भी बीमार होते हो तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, क्यों जाते हो, कंसल्टेशन लेने जाते हो. तो सेम यहाँ पर है, वो पहले क्या करेगा, कंसल्टेशन लेगा, देन अकॉर्डिंग टू दैट चेक द फिजिबिलिटी एंड देन फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड आफ्टर दैट टेक द डिसीजन एंड गिव द डायरेक्शन. ओके. The next is free rein direction. तो free rein direction subordinates are encouraged to solve the problem independently and only highly educated, intelligent and sincere subordinates are required to apply these direction techniques. Okay, जैसे कि आपका नाम से क्लियर हो रहा है, free rein डायरेक्शन. ओके, तो फ्री रेन को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज लेजी और लेड बैक. बिकॉज ऑफ द लूज लीडरशिप क्वालिटी इट इज़ नोन टू हैव लेजी. फ्री फायर मैनेजर्स आर नॉट लेजी बट यूजुअली आर कंसर्न अबाउट द डैमेजिंग देयर टीम थ्रू माइक्रो मैनेजमेंट. सो दीज मैनेजर्स हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन देयर टीम. Okay, to largely self-directed and only step in when progress is getting ऑफ कोर्स. ठीक है, इसमें जो आपका मैनेजर होता है उसका टोटली फेथ किस पे होता है, अपने सब ऑर्डिनेट पे, और इंडिपेंडेंटली उनको क्या करने के लिए बोलता है, काम करने के लिए बोलता है. लेकिन जो आपके हाईली एजुकेटेड इंटेलिजेंट्स होंगे, ओके, दिस टाइप ऑफ स्टाइल वुड नॉट बी गुड फॉर लो स्किल्ड वर्कर डूइंग रूटीन स्टैंडर्डाइजेशन वर्क. ओके, द नेक्स्ट इज autocratic direction.
ऑल्सो कॉल्ड ऑथेंट्रिज्म। ओके, ऑटोक्रेटिव डायरेक्शंस क्या होता है आपका? This is opposite of free rein direction, superior commands and his subordinates and has close supervision. Now we left to the subordinates to show their initiative. Okay, because one persons make all of the decision. इसमें आपका ऑटोक्रेटिव डायरेक्शन, उसमें एक ही पर्सन होगा जो सारे डिसीजंस क्या लेगा. दिस इज द polar opposite of laissez-faire manager. Although not as a bad it sound, manager use this type of style when there is too much conflict or in their team and they must become the deciding vote for most important decision. Okay, क्लियर हो गया आपका कौन से सिचुएशंस में वो करता है? जब मीन्स वहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए वो क्या करता है, डिसीजंस लेता है. ओके, देन summary. So direction is a management function performed by the top level officers of management. Direction is telling people what to had, seeing at they do it. The principle of direction is unity of directions, feedback, information and harmony of objects. So leading and directing are, the conclusion is the leading and directing are important management functions but usually do not appear in the main job description. A great manager need to be able to both lead their team and direct their operations. Failing either of these roles in a or disasters. Okay, so this was all about the directing. So thank you so much.